Hey guys, what's up? So today we're gonna about to start about the continuum part. So those who have watched the previous videos knows that continuum was the next part of it, and yes, this is a course of fluid mechanics. Any student from chemical engineering, mechanical engineering, production engineering who has the subject of fluid mechanics, they can continue the course from here. And yes, relevantly the course will be finished, so you guys can rely on the course and just finish it on the pace. Okay, so yep, let's start the topic. So yes, the previous video we have seen about the fluids, the kind of fluids, and like the fluids have two parts, basically the liquids and the gases. Okay, today we were about to start about the continuum part. So what does a continuum means? Continuum basically means the fluid that is there is basically smooth. Okay, the fluid that is there is basically smooth, but when we basically zoom in the fluid, we get to know that the fluid also has some gaps on it. Okay, the fluid particles also do have some gaps in it. Okay, for example, if we take a piece of पनीर. ओके अगर हम एक पनीर का पीस लेते हैं तो हमको पता चलता है कि जब हम पनीर के पीस को हम बड़ा करते हैं तब उसमें भी छोटे छोटे गैप्स दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, तो वही बात है कि जब हम पनीर को छोटा करके देखते हैं तब उसमें हमको कोई गैप नहीं दिखता, लेकिन हम जब भी उसको बड़ा करते हैं तब हमको गैप दिखता है. सेम फ्लूइड्स में भी होता है कि फ्लूइड को जब हम एक मतलब जूम आउट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब हमको पता चलता है कि फ्लूइड में मतलब हमको ऐसा लगता है कि फ्लूइड में कोई क्या बोलते हैं गैप नहीं है. ठीक है, लेकिन हम जब इसको जूम इन करते हैं तब हमको पता चलता है कि फ्लूइड में गैप होता है. ओके, you can note it down that if we go to the microscopic level also, then the molecular arrangement is not continuous. ओके एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है तो एक मॉलिक्यूल वहाँ पे होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है तो एक मॉलिक्यूल वहाँ पे होता है, कभी भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. ओके, such a fluid is called a continuum, which simply means that its variation in properties is so smooth. Okay, so this is known as the continuum. You can note it down from here. Okay, now coming to the next part, हम नटसन नंबर के बारे में जानेंगे. ओके, now imagine like you have a ink over here. This is a jar. This is water. Okay, and here is the ink. Okay, you have just मतलब एक इंक के ड्रॉप को तुमने यहाँ पे गिरा दिया. ओके, नाउ यू नो दैट the fluid has particles in it. Okay, the fluid is made up of water particles. Okay, now ये जो इंक है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा. ठीक है, तो ये इंक एक फ्लूइड पार्टिकल से दूसरे फ्लूइड पार्टिकल में फॉर कोलाइडिंग a molecule to the next molecule, distance covered by the molecule is known as the mean free path. Okay, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल तक जाने का जो पाथ होता है, जितना भी मतलब डिस्टेंस ये कवर करता है, इसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं. इस इंक के पार्टिकल को अपना इंक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ. ओके, मीन फ्री पाथ. ओके, यू कैन राइट इट mean free path. For colliding
a molecule to the next molecule, the distance covered by the molecule is known as the mean free path. For colliding a molecule to the next molecule, the distance covered by the molecule is known as the mean free path. For colliding a molecule to the next molecule, the distance covered by the molecule is known as the mean free path. Okay. अभी हम Knudsen नंबर के बारे में जानेंगे. Knudsen नंबर बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. अगर हम एक कंटेनर लेते हैं तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है, ओके, सपोज दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ and we are denoting the mean free path as lambda. Okay, mean free path. Then the Knudsen number is basically the mean free path divided by the characteristic length. What it does means it gives you a number. Okay, now you can just imagine it that this is the container and this is the molecule. Okay, and this is the ink molecule and this is the water molecules. Okay, now for colliding the ink molecule to the water molecule, it needs to cover a path. Okay, for colliding the ink molecule to this molecule, it needs to cover a path. For colliding this molecule to this molecule, it needs to cover a path. For colliding this molecule to this molecule, it needs to cover a path. Okay, now the average of all the path is known as the mean free path. Okay, now ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के जो लेंथ है इसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज द एवरेज मीन फ्री पाथ ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी ऑफ फ्लूइड. नाउ if this is the characteristic length, okay, this is the characteristic length and we are dividing the mean free path value to the characteristic length value, then we can find a number. Okay, now if the number value is basically lower than 0.01, okay, what does that mean? कि बेसिकली जो मीन फ्री पाथ है वो मतलब वो क्लोज्ड पैक है. ओके, बट इफ द वैल्यू इज मोर, इट मीन्स दैट द गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स इज मोर. समझ में आ रहा है? मतलब एक पार्टिकल और एक पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है. ओके, इफ द डिस्टेंस इज मोर देन basically the intermolecular space between two particles is more. Okay, the intermolecular distance between two particles is more. So this is what the Knudsen number tells you. Okay, you can write the definition of Knudsen number as a dimensionless parameter known as Knudsen number Kn equal to lambda by L, where lambda is the mean free path and L is the characteristic length.
it describes the degree of departure from continuum. ओके, जब नट्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से ज़्यादा होती है तो जो कंसेप्ट होता है कंटिनम का वो अच्छे से होल्ड नहीं होता. पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि गैप ज़्यादा होता है. ओके, इफ़ द वैल्यू इज़ मोर दैट मीन्स जो ऊपर का वैल्यू है, जो लैम्डा का वैल्यू है, वो नीचे के कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के वैल्यू से ज़्यादा है. ओके, दैट मीन्स इट्स मोर देन 0.01. That means the mean free path between two molecules is more, which means there is more gap. If there is more gap, then we can't consider it as a continuum, because continuum, what we learned in continuum, the continuum is basically smooth. Okay, that means we have assumed that it has basically the continuum, it has very less intermolecular space. So if it has very less intermolecular space, so this is what basically a continuum is. But if the value is more than 0.01, that means there is more intermolecular space and we can't consider it as a continuum. So you can write the point here that usually when Knudsen number value is 0.01, more than 0.01, the concept of continuum does not hold good. Okay. अभी अगर हम कुछ कंडीशंस की बात करें तो एक होता है स्लिप फ्लो. ओके, स्लिप फ्लो होता है जिसमें नट्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से ज़्यादा होती है और वो 0.01 की लिमिट में रहती है. ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ सम हाउ लिक्विड. ओके, इट इज़ मतलब बियरली इट इज़ लिक्विड. ओके, नाउ if it is a transition phase, means if it's basically 0.1 और 10 के अंदर होता है तो ये होता है चेंज ऑफ फेज के केस में. इसको हम ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं. ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं. और एक होता है जिसको हम फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो बोलते हैं. Molecular flow. What is a free molecular flow? This is basically the Knudsen number is more than 10. If it's more than 10, then it is basically gas. Okay, so you can write the point in your notes. Beyond the critical range of Knudsen number, the flow are known as slip flow, जो कि 0.01 और 0.1 के बीच में रहता है. वो somehow liquid रहता है. ओके, देन ट्रांजिशन फ्लो जो कि 0.1 और 10 के बीच में रहता है. दैट बेसिकली इंडिकेट्स द चेंज ऑफ फेस कंडीशन. ओके, चेंज ऑफ फेस कंडीशन. और एक होता है जो फ्री मॉलिक्यूल फ्लो होता है जो कि 10 से ऊपर होता है और दिस इज बेसिकली द गैसियस फेस. ओके, हाउएवर मतलब इस वाले कोर्स में हम
इसको बेसिकली 0.01 से लेस ही समझेंगे, एंड इट इज़ यूजुअली सेड दैट द फ्लूइड इज़ ए कंटिन्यूम. ओके, नहीं तो अगर हम 0.01 से ज़्यादा समझेंगे तब हम इसको कंटिन्यूम नहीं बोल पाएंगे. तब या तो वो समहाउ लिक्विड होगा, या फिर वो चेंज ऑफ फेज होगा, या फिर अगर 10 के ऊपर हुआ तब तो कंटिन्यूम होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तब गैस होगा. ओके, नाउ हमको कुछ और चीज़ें जानना है. दैट इज़ द मास डेंसिटी. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मास डेंसिटी. मास डेंसिटी समझ लेते हैं कि पहले डेंसिटी क्या होता है. ओके, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, अगर हम इसको फील करना चाहें कि डेंसिटी होता क्या है, तो बेसिकली इट्स द, अगर मतलब एक गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में अगर 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब है, ओके, एंड यू हैव सम मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट. ओके, व्हाट डेंसिटी मीन्स इज कि उस 1 मीटर क्यूब के मॉलिक्यूल में कितना सारा कितनी केजीज का मास है. ओके, कितने केजीज, या फिर यू कैन से 0.1 kg, और यू कैन टर्म द यूनिट एज ग्राम ऑल्सो. It's up to you. Okay, it's basically a convention, like in what unit you wanna give it. Do you wanna give it an CGS unit or MKS unit? It's just up to you. Okay, so basically 1 मीटर क्यूब के अंदर, ओके, कितना कितना केजी का बेसिकली आपके पास मास है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने ग्राम का आपके पास मास है, इसको हम बेसिकली डेंसिटी बोलते हैं. ओके, सबको पता होगा यार डेंसिटी, लेकिन हाँ, बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो डेंसिटी बताना भी ज़रूरी है. तो हाँ, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. अभी यूनिट एंड डायमेंशंस थोड़े देख लेते हैं डेंसिटी के. डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, और वॉल्यूम का क्या होता है लीटर क्यूब. ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो गया ml-3, ml⁻³ अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो MKS यूनिट में जो डेंसिटी होता है kg पर मीटर क्यूब. ओके, मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो मास होता है kg में, और जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में होता है. MKS मीटर, kg सेकेंड. और अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो जो डेंसिटी होता है वो किस में होता है, वो ग्राम में होता है और सेंटीमीटर क्यूब में होता है. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द डेंसिटी. अभी हम डेंसिटी का जो डेंसिटी होता है उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, और हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी में क्या इफेक्ट होता है. अब हम ये देखेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन मीन्स द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी का क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी का क्या होता है. ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. डेंसिटी हमको मालूम है कि वो होता है मास बाय वॉल्यूम. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इमेजिन करो कि 1 मीटर क्यूब का
क्यूब है तुम्हारे पास, और तुम उसको बेसिकली तुम उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ओके। अगर तुम उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना चाहेगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, वो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना चाहेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे। और जस्ट इतना ही नहीं है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड में उसमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी आने लगेगा ना, एनर्जी आने। तो वो क्या चाहेंगे, एक दूसरे से दूर जाने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम पानी को बॉयल करते हो, ठीक है, पहले वो क्या रहते हैं, पानी रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब तुम उसको हीट देते हो, जब तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तब क्या होता है कि तुम उसको एक्साइट करते हो कि वो दो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाए, ओके। जब तुम उसको एक्साइट करते हो कि वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाए, तब बेसिकली क्या होता है कि तुम उसको लिक्विड स्टेट से तुम गैसियस स्टेट में डाल रहे हो। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, उसका डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो जो पानी है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं। तो वही होता है अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, ओके। और जो मास रहता है वो तो कांस्टेंट होता ही है हर वक्त, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी, ठीक है। तो यू कैन जॉट डाउन दिस पॉइंट। इफ temperature is increased, then density starts to decrease. Now take the effect. Now you can नाउ हम डेंसिटी की बात हम लोग कर लिए, अभी हम प्रेशर की बात करें। और एक बात है, अगर फ्लूइड की बात कर रहे हो ना, तो बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि फ्लूइड का मतलब ये होता है कि पानी होता है, लेकिन फ्लूइड का मतलब पानी नहीं होता है। फ्लूइड मीन्स बेसिकली गैस एंड लिक्विड, ओके, गैस एंड liquid. So if it is told like fluid, so basically it's not just a liquid, you have to consider the gas also, okay. Now अगर हम प्रेशर की बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओके। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो क्या होता है, सपोज यहाँ पे कुछ मासेस है, सपोज यहाँ पे मास है, कुछ पार्टिकल्स एक साथ है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होता है, समझ लो कि कुछ चमत्कार हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ गया, तो ये 2 atm हो गया। अगर ये 2 atm हो गया, ओके, तो क्या होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो मास तो सेम होगा ना, मास सेम है, डेंसिटी सेम है, मतलब एक वॉल्यूम में इतने मास रहता है, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है, ओके। जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, ओके। अगर वो मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा पास पास आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो डेंसिटी का फॉर्मूला है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम घटता है, ठीक है। अगर अगर ये क्वांटिटी बढ़ता है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगा ना। इसका मतलब क्या है, अगर प्रेशर बढ़ा, अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया गया तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगा। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ओके, द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके। लेकिन लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होती। दिस इज़ बेसिकली ओनली टू वॉट द गैसेस। लिक्विड की डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है अगर
हम पानी को 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डालते हैं तो ओनली जो डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज होता है वो सिर्फ 2% का चेंज दिखाया जाता है, ठीक है। इफ़ वी पुट ए प्रेशर ऑफ 2000 atm on water, then the density of water changes only up to 2%. Okay, so this is only true for the gases. Okay, if the pressure is increased then the density only increases. This is basically only true for the gases. और वाटर में इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता, फ़र्क दिखाई पड़ता है वो भी बहुत छोटा, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में। ओके, अब कुछ वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द